And we are live. A very good evening to one and all watching out here. I hope you all are doing great. I'm sure the weekday has started, and I hope it has started on a very good note. And today is Monday, and I think talking about books can make our weekdays ahead a little more better than a weekend because we just passed by it. So we are live with Divyansh, and we'll be starting off with it soon. That we'll be talking about Divyansh's favorite book, Think and Grow Rich. And meanwhile, why don't you tell us how your Monday went and also about your favorite book here? So we'll be starting out very soon, and this is your host 𝗕ciecie𝗸 𝗥𝗲𝗱𝘀. Okay, so we'll be talking about it soon. And talking about book reads. So I am sure you all are aware of what book reads is. So book reads is a community by the rostrum community where we connect all the like-minded people who find their interest in books under the same roof. So if you have any interest in books where you want to talk about your favorite book, your favorite author, your favorite genre, then why not connect together? So, what more are you waiting for? Just tap on the link provided, and you can be a part of this fantastic book reading club where we all can discuss about our favorite pastime, that is reading book. And yes, we will be starting out very soon. I hope you all are doing great, yeah? And Divyansh and I will be discussing about the self-improvement books and how really these books can impact on our life, especially in the era of pandemic where we all have been surrounded mostly by the negative thoughts and vibes. It's important to know about self-improvement, how we can grow and overcome this phase. And yes, that is about it. So if you haven't joined our group yet, just tap on the link provided and you will be part of this amazing book reading club. A few more minutes. I am really excited to talk about this book because I personally found this book to be very, very interesting. And yes, we'll be talking about it soon. All right, I guess it's the right time to talk because it is 9 o'clock right now and I am hosting from Bangalore. And I hope you're all doing great. And this is Divyansh alongside to me, who will be talking about his favorite book, The Think and Grow Rich by Napoleon Hills. So, hi Divyansh, how are you doing? Hi Swati, I'm doing good. आप बताओ, how is it going in Bangalore? I'm I'm super doing excited great. to do that session. Yeah. I'm excited too. So, firstly, to introduce you all, Divyansh is an amazing content creator who puts up videos mostly about self improvement and a lot about books. He's an avid reader. Why don't Divyansh introduce about yourself more than me telling about it? Okay. Hello everyone. First of all, thank you so much for joining in. And as a book reading is one of my one of the only passions I have in life. Right after being in my college and all that stuff, I realized कि यार मेरा interest book side में है. So that is why I started reading books. It's been more than 2 years मैंने books पढ़ी हैं. So because of that, content creation started. I love sharing book summaries with people. I love adding value in people's life. Like आज हम Think and Grow Rich discuss करने वाले हैं. तो मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड कोई है नहीं. थोड़ा नर्वस मैं इसलिए हूँ कि भाई इतने लोग आए हुए हैं, तो आई डोंट नो. बट या, और ऑल्सो अदर देन दैट मैंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, बुक्स टू बिलियनेयर, जिसका विजन सिंपल है. जो यहाँ पे लोग आए हैं, जैसे जैसे ये एक प्लेटफॉर्म आप लोगों ने प्रोवाइड किया है कि टू कनेक्ट द रीडर्स अराउंड, मैंने भी एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च किया कॉल्ड एज बुक्स टू बिलियनेयर. उसका स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ. इट्स काइंड ऑफ फनी दो. सो आई रिमेंबर आई एम फ्रॉम क्राइस्ट यूनिवर्सिटी. सो मेरा एग्जाम चल रहा था. इट वाज माय सेकंड एग्जाम. It was something related to finance and I have no interest in finance, to be very honest. तो in our class it was said कि अगर आपका 1 घंटे में एग्जाम हो जाता है, you can leave and you can go to a PG or your hostel wherever you stay. तो आफ्टर राइटिंग द एग्जाम मैं वहीं बैठा हुआ था. मैं सब लोगों की शक्लें देख रहा था कि भाई सब लिख रहे हैं, मैंने 1 घंटे में खत्म कर दिया, ऐसा क्या लिख रहे हो. तो तब मैंने सोचा कि व्हाई डोंट आई लाइक फोकस ऑन समथिंग दैट आई कैन प्रोवाइड थ्रू माय स्किल्स. एंड मैंने सोचा कि यार मेरी लाइफ में जो भी हुआ है, जो भी मैंने थोड़े बहुत फॉलोअर्स अचीव किए हैं, थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट लोगों की नज़र में आई है, वो बुक से आई है, क्योंकि मैंने जो सीखा वहीं से सीखा. आई ओwe इट ऑल टू बुक्स. तो मैंने कहा कुछ ऐसा कुछ बनाना चाहिए जो लोगों को बुक रीडिंग में हेल्प करे. राइट नाउ वी हैव बुक समरीज. राइट नाउ 5-10 मिनट की समरीज होते हैं, यू फील हैप्पी कि चलो बुक पढ़ ली. बट सबको पता है, जो यहाँ पे रीडर्स हैं, एविड रीडर्स हैं, जो इस क्लब को ज्वाइन कर रहे हैं, कि फिजिकल बुक का तो अपना मजा होता है. लाइक व्हेन यू फिनिश दैट बुक, यू शो इट टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली
कि भाई मैंने ये बुक खत्म कर दी, इट वाज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो ऐसे ही बुक्स टू बिलियनेयर लॉन्च हुआ। हमारा विज़न है कि इस साल 10,000 से भी ज़्यादा लोगों तक हम पहुँचे, उनकी रीडिंग जर्नी में हेल्प करें। ये प्रमोशन नहीं है, इट्स लाइक अ विज़न थ्रू व्हिच आई वांट पीपल टू कनेक्ट इन, क्योंकि मैं थक गया हूँ यार लोगों को ये बोलते हुए कि यार बुक्स बोरिंग होती हैं। बुक्स से बढ़िया कोई चीज़ नहीं होती। आई एम सो एक्साइटेड अबाउट दिस। तो दैट्स द होल विज़न बिहाइंड द प्रोग्राम, दैट्स हू आई एम अ पर्सन। आप मुझे बुक से जान सकते हो, अ पैशनेट क्रिएटर से जान सकते हो, अ गाय जो एकदम अलग करने का सोचता है, क्योंकि आई रिमेंबर मेरे फैमिली में भी सब कहते थे कि यार तूने बीबीए कर ली, अब एमबीए कर, ये सब में कुछ नहीं रखा। बट मैंने कहा नहीं, हम बुक्स पढ़ेंगे, हम लोगों को सिखाएँगे, हम लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे, एंड हियर आई एम प्रोवाइडिंग बुक समरीज एंड क्रिएटिंग कंटेंट। I mean, that's quite an interesting story for sure. I mean, as you said, books surely are our best friends. हुँ, And I guess, yeah, I mean, how much ever we evolve the physical book, mein what maza we get, I don't think reading or scrolling हुँ, through Kindle. I'm sure it's a very, biased opinion where many people हुँ, might pounce as saying हुँ, that, I no digital era, we need to evolve into a lot of Kindle हुँ, reading and all stuff. But I हुँ, completely agree with you. Physical books are something which gives us the हुँ। vibe of reading the book, honestly, and एग्ज़ैक्टली, all मतलब the आप very best. Yeah. या आप बेड पे बैठे हो, आप लेटे हुए हो, आप फिजिकल बुक पढ़ रहे हो, दैट्स द बेनिफिट, दैट्स द फन यू गेट। यू डोंट गेट दैट लाइक व्हाइल यूजिंग अ फोन एज़ यू सेड किंडल, राइट? एंड हाँ, थैंक यू Absolutely. सो मच यू सेड। लेट्स सी, वी आर सुपर एक्साइटेड, एंड अभी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, बहुत लोगों ने सपोर्ट भी किया है, फैमिली में, फ्रेंड्स में, बहुत लोग विज़न का भी पार्ट बने हैं, काफ़ी अच्छा बैच चल रहा है। तो बहुत Right. नर्वस हूँ बट बहुत अच्छा भी लग रहा है, तो लेट्स सी। Right. So today we are here to discuss about the self-improvement book, Think and Grow Rich. So what या made you pick this book? Like, how do you think this book stands out from all the others out there in the shelves out there? अब नाम में ही देख लो ना, हम इंडिया में रहते हैं। इंडिया में पैसे का सिक्का चलता Right. है। रिच बनना है मुझे, मुझे मिलियनेयर बिलियनेयर बनना है। थिंक एंड ग्रो रिच। मुझे तो देख के Yeah. क्यूरियोसिटी हुई कि भाई सोच के आप इतना पैसे कमा सकते हो कि आप इतना करोगे। दैट वाज़ द फर्स्ट थॉट आई हैड जब मैंने ये बुक उठाई थी। बट उसके बाद आई रियलाइज़ इस बुक में क्या है, इस बुक में ऑथर ने 12-13 प्रिंसिपल्स बता रखे हैं व्हिच यू कैन अप्लाई इन लाइफ, एंड आप हर फील्ड में सक्सेसफुल हो सकते हो। Hmm. जो पैसे हैं वो एक स्टैंड पॉइंट से बताया गया कि ये चीज़ पैसे में लग सकती है, ये चीज़ आप अपने अपने रिलेशनशिप्स में लगा सकते हो, अपने पर्सनल Hmm. गोल्स में लगा सकते हो, अपनी हेल्थ पे लगा सकते हो। तो ये जो अ, यू नो प्रिंसिपल्स हैं, ये आज भी वैलिड हैं, बहुत पहले लिखी गई थी, बट ये जेनुइनली वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स है। Okay, so you just mentioned a point that आज भी ये book valid है. So this हुँ, was written, I guess, back in 1930s, 37, I guess. हाँ So जी, how do हाँ you जी। think this book can be relevant in today's world what we are हुँ। living in? हुँ। सो इट्स लाइक स्टोरीज़ उस टाइम की पुरानी थी। इट वाज़ लाइक मोर अबाउट हेनरी फोर्ड एंड ऑल। जब Right. उस टाइम पे उन्हें बहुत सक्सेसफुल माना जाता था, वो आज भी हैं, बट आज बहुत चेंज हो गया, एक रिवॉल्यूशन आ गया। वी हैव सोशल Right. मीडियाज़ आवरसेल्व्स, Hmm. वी सी कि ये सब इतना मेजर रिवॉल्यूशन आया। बट पता है पॉइंट क्या है कि लाइक जो Hmm. प्रिंसिपल्स होते हैं ना, दे आर ऑलवेज़ यूनिवर्सल। आप Hmm. एक्सपीरियंसेस बदल सकते हो, आप स्टोरीज़ बदल सकते हो, बट जो प्रिंसिपल है वो वैलिड रहता है। तो इस बुक में ऑथर ने एग्ज़ाम्पल्स ऐसे दिए हैं जिससे शायद आप रिलेट ना कर पाओ, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट जो सेल्फ हेल्प बुक्स होती हैं, वो नॉर्मली अमेरिकन ऑथर्स लिखते हैं। सो वी डोंट Right. रिलेट दैट मच कि भाई अच्छा ये क्या स्टोरी है। इंडियन ऑथर्स के Right. साथ वो रिलेटेबिलिटी आती है। बट जो प्रिंसिपल्स हैं, लाइक मैं एक स्टार्ट करता हूँ टू समराइज़ इट, एक एक चैप्टर बताता हूँ। पहला चैप्टर है डिज़ायर। अब Right. इसमें ऑथर बोलते हैं कि लाइफ में कोई भी चीज़, अगर आप कोई भी सक्सेसफुल इंसान अगर कहीं पहुँचता है, वो शुरुआत Hmm. होती है एक थॉट से, एक डिज़ायर से कि मुझे कुछ करना है। और ये डिज़ायर को एक बर्निंग ऑब्सेशन बनाने के लिए ऑथर ने 6 स्टेप्स बोल रखे हैं। ये मैं बार-बार अपने समरीज़ में भी बोलता हूँ कि पहला, यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि क्या डिज़ायर है आपका। अब जैसे इस बुक में Hmm. ऑथर पैसे का कहते हैं कि आपको क पैसे कमाने हैं, कितने पैसे कमाने हैं? 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, चलो ठीक है, टारगेट सेट कर लिया। कब तक कमाने हैं? इस साल, Hmm. 20 साल में, 40 साल में? एक एक टारगेट होगा तो एक बंदे को पता होता है कि मुझे क्या करना है। तीसरा इसमें कहा था कि अच्छा चलो आपने सोच लिया पैसे कमाने हैं, अब उसके लिए क्या-क्या करने वाले हो? क्या 10 चीज़ें हैं जो आप करने वाले हो? अब Hmm. होता क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लोग इतना अगेंस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ मोर लाइक कि बैठे रहो, बस सोचना है, कुछ करना नहीं है। तो इसमें ये डिफरेंट है कि आपको बताया गया है कि क्या 10 स्टेप्स आप करने वाले हो, पहले ही खुद को क्लियर करो। फिर उसमें कहते हैं 4th स्टेप कि ऐसा इमीडिएटली आप क्या करोगे? इमीडिएटली Hmm. टू टेक दैट एक्शन जिससे आप वो मेजर चेंज ला पाओ। नंबर 5th वाज़ कि इसको अब मान लो आपने अचीव कर लिया, आपको वो Hmm. विजुअलाइज़ करना है। आफ्टर एवरी प्लान यू मेड, आफ्टर एवरी विज़न यू हैड, अब आप विजुअलाइज़ कर लो कि चलो ये अचीव हो गया। मेरा गोल मान लो 10,000 लोगों तक पहुँचना है।
तो जब मैं इसको सुबह रोज़ विजुअलाइज़ करता हूँ, तो मुझे एक इंस्टेंट पुश मिलता है कि हाँ, आई एम गोइंग राइट, मुझे और मेहनत करनी है, इतने से नहीं चलेगा। एंड फाइनली इसमें ऑथर बोलते हैं कि इसको 2 बार पढ़ना है, सुबह भी Hmm. और रात को सोने से पहले भी। मेरे यहाँ पे आई डोंट नो, हाँ, वहाँ पे एक डायरी सी पड़ी हुई है, वो कहते हैं ना वो, आपने ये जवानी है दीवानी देखी है? मतलब Yeah. यहाँ पे चैट देख पा रहा हूँ, 1 सेकंड, लोगों का आइडिया मुझे हो जाएगा। हाँ, 1 सेकंड। हाँ, तो यहाँ पे किस-किस ने भी ये जवानी देखी है, तो उसमें बताते हैं ना कि जो वो बनी होता है, वो एक अपनी जर्नल सी बनाता है। तो मैंने अपने जर्नल पे ना वो फ़ोटोज़ लगा रखे हैं कि मुझे क्या-क्या अचीव करना है, क कब तक करना है। दैट इज़ द सेंस ऑफ मोटिवेशन आई गेट व्हेनेवर आई वेक अप इन द मॉर्निंग कि हाँ, ये मेरा विज़न है। तो ये एक चीज़ है, ये एक ऑब्सेशन में बदल जाता है एंड वन्स यू हैव दैट बर्निंग डिज़ायर, अब इसमें बोलता हूँ जैसे इंडिया में कहते हैं ना कि लैला के पीछे मजनू इतना पागल हो गया, इतना ऑब्सेशन उस लेवल का कि भाई मुझे Right, ये right. करना है। तो वन्स यू हैव दैट लेवल ऑफ ऑब्सेशन फॉर योर गोल्स, आप लिटरली कुछ भी अचीव कर सकते हो। यू नो दैट्स लाइक वेयर इट स्टार्ट्स विद अ थॉट। Right, right. I guess I can absolutely agree to you on it. In fact, या, you even mentioned a point like desire to achieve anything in life. I guess desire is the starting point of it. And weak एग्ज़ैक्टली। desires, I guess, ignite a very weak flame is something I guess हुँ, it's mentioned in the book as well. But एग्ज़ैक्टली। alongside desire, you also mentioned a few points about procrastination because हुँ, we think about a plan, we like, आज हम ये करेंगे, वो करेंगे, this, that, but then हुँ। end of the day, we just sit back and then we'll be like, I'll do it tomorrow. So, how do you deal with procrastination? I guess there are a few things mentioned in the book as well about it. श्योर, श्योर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पता है क्या है, मेरा ना थोड़ा डिफरेंट सोच है। आई डोंट नो इट्स बिकॉज़ ऑफ बुक्स और बिकॉज़ ऑफ द पर्सन आई एम। सो मान लो मैं अभी कोई भी बुक पढ़ रहा हूँ, तो उस बुक में अगर एक चीज़ बोली गई है ना, तो मेरे अंदर वो पागलपन होता है कि मैं उसको इमीडिएटली करूँगा, मुझसे नहीं रुका जाता। मान लो जैसे एक बुक थी एटॉमिक हैबिट्स, उसमें लिखा था कि ना आपको जार बनाना चाहिए टू टारगेट योर हैबिट्स कि आप उसको कितना दिन कर रहे हो। आई एम नॉट श्योर आपने Hmm. पढ़ी होगी एटॉमिक हैबिट्स। लाइक जो भी लोग ये सुन रहे हैं, एटॉमिक हैबिट्स इज़ अ ग्रेट बुक। वो हैबिट बिल्डिंग के बारे में आपको सिखाता है। तो इसमें ऑथर कहते हैं कि आप जार बनाओ, जार में 21 डेज़ लगते हैं ना हैबिट में, 21 आप बुकमार्क्स या पेन्स लगा दो। 2 Hmm. रखो ताकि डेली का प्रोग्रेस आप ट्रैक कर सकते हो। आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे मैंने वो पढ़ा, मैंने कहा भैया मेरे को ना जार चाहिए, मुझे नहीं पता। आप बताओ घर पे पड़ा है, नहीं तो मैं बाहर से लेके आता हूँ। मुझे ये चीज़ ट्राई करनी है, क्योंकि इसके बारे में वीडियो बनाऊँगा, इसको एग्ज़ीक्यूट करूँगा, मुझे अच्छा लगेगा। होता क्या Right. है होता क्या है कि ना मोटिवेशनल बुक्स या इस टाइप की बुक्स आर गुड फॉर उन लोगों के लिए जो टेम्परेरी उनको सैटिस्फैक्शन देती है कि बुक Hmm. पढ़ ली, अच्छा लगा। बट अगर आपने उससे कुछ एग्ज़ीक्यूट नहीं किया, कुछ उससे इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो देयर इज़ नो पॉइंट। फिर वो एक फ़ील गुड मूवी बन जाती है कि 3 घंटे की मूवी थी, या 2-3 महीने में बुक खत्म करी, उसके बाद बैक टू नॉर्मल। प्रॉब्लम यही आती है कि लोग एग्ज़ीक्यूट नहीं करते। आप बुक बुक में ना बहुत नॉलेज है, 10-20 साल लोगों की जो जर्नी है, वो एक बुक में लिखते हैं। मैं कह रहा हूँ आप Hmm. कोई एक चीज़ ट्राई कर लो, एक चीज़ भी बहुत है, क्योंकि बातें सिमिलर हैं। हर बुक में सिमिलर बात कही जाती है कि बी Hmm. डिसिप्लिन्ड, वर्क ऑन योर प्रायोरिटीज़, फैमिली को टाइम दो, हेल्थ को टाइम दो। आप हर Hmm. बुक से कोई एक चीज़ भी टारगेट करोगे ना, उसको रोज़ करते रहोगे, उसको आदत बना दोगे, जेनुइनली लाइफ़ चेंज हो जाएगी। बट अगर कुछ नहीं करोगे, तो वो स्टिल सेम प्रोसेस रह जाता है। तो दैट्स व्हाट आई I थिंक। guess I can relate on this, but I am on the other side of what you mentioned because I'm a person, if I'm like, I want motivation, I'll go watch a video. It will या, stay till the video ends. After that, या, I'll be like, okay, wait, did my motivation just run away with just हाँ, the video, how it एग्ज़ैक्टली। ended? So, हाँ। how do you make sure that you actually, stick to what you have planned? हुँ। समटाइम्स हो जा ऐसा कभी-कभी होता है कि यार आपने प्लान किया, वो अचीव नहीं होता है। उस टाइम पे हाँ, ऑफ कोर्स बहुत बुरा भी लगता है। बट ऑन Hmm. नॉर्मल डेज़ इट्स लाइक प्रायोरिटीज़ क्लियर होती हैं कि ना ये अब मैंने ये चीज़ इसी हफ्ते सीखी है टू डील विद इट। सो एक ऐप आती है गूगल टास्क करके। मैंने सोचा है Hmm. कि मुझे ना डेली के ये 10 काम करने हैं। मेडिटेशन, 10 पुशअप, रोज़ बैडमिंटन खेल के आना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, ये 10 काम करने हैं और डेली रिपीट पे होंगे ये टास्क। वो उस पे एक Hmm. ऑप्शन होता है। तो अगर मुझे पता है मैंने ये 10 काम कर लिए, तो मेरा दिन अच्छा गया। नहीं किया तो आई नो कि मेरा कहाँ गलती हो गई। अगर आप अपना Hmm. दिन ट्रैक कर सकते हो ना कि आपकी क्या-क्या हैबिट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, तो आप Hmm. प्रोक्रेस्टिनेशन से थोड़ा कम होगे मेरे हिसाब से। मतलब समझ रहे हो Okay. आप कि 10 Yeah. मतलब व्हाटएवर योर हैबिट्स आर, प्रायोरिटीज़ आर, आप एक बार लिख लो एंड उसको डेली Hmm. अपने सामने रखो। किसी एक के Okay. पास अगर आप अटेंशन नहीं दोगे, तो आपको विथ टाइम रियलाइज़ हो जाएगा कि यहाँ पे थोड़ी कमी है। बट अगर आप लिखोगे ही नहीं, तो यू विल फील वेरी कन्फ्यूज़्ड कि समझ ही नहीं आ रहा भाई, इतना काम है, आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट विद, वेयर टू गो विद एंड अभी क्या होने वाला है। तो ये एक मेरे हिसाब से बहुत अच्छा टूल है
to deal with I think this is procrastination? something I should at least try. Like people who are lazy, just sitting on the couch and thinking of what to do, planning more than executing. No, but Yeah. sometimes I guess it's mentioned in the book as well. There's a topic called fear. Sometimes when Hmm. we don't achieve it, or sometimes we get feared out of what if it doesn't come out the way we planned it. So, what is your intake about fear in life? द बेस्ट वे टू, बहुत ही क्लीशे लगेगा बट स्टिल मैं आपको बताऊंगा ऐसे क्यों मैं कह रहा हूँ। द बेस्ट वे टू ओवरकम फियर इज टू फेस इट। लेट मी टेल यू हाउ। Okay. अभी मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा हूँ, अभी मैं आपको ऐसा लग रहा हूँ कि ये बंदा अच्छे से समझा रहा है। बिलीव मी, आई वाज अ टोटल शाय गाय। व्हेन आई से दैट आई मीन इट। बहुत शाय था, मैं वीडियोस नहीं बना पाता था, मैं लोगों से बात नहीं कर पाता था। बट लाइक इस फेज में मैं 1-2 महीने रहा था, वेयर आई आई यूज्ड टू हेट माय सेल्फ कि भाई मैं कुछ कर क्यों नहीं रहा हूँ। आई नो मैं शाय हूँ, आई नो मैं वीडियोस बनाना चाहता हूँ, बट आई डोंट हैव दैट कॉन्फिडेंस, व्हाट शुड आई डू। 1-2 महीने इस फेज में था। फिर आई कंज्यूम्ड सम कंटेंट, एक ऋतिक रोशन की वीडियो थी ऑन फियर इन जनरल, कि हाउ टू डील विद फियर, एंड कुछ संदीप महेश्वरी की थी। तो मैंने वहां से खुद को पुश किया कि फियर, जैसे ही मैंने उसको किया ना, कि जैसे जैसे मैंने वीडियोस बनाई, कुछ अच्छी कुछ खराब, धीरे 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 महीने 2 महीने खराब गई, बहुत ही क्रिटिसिज्म भी मिला कि भाई तू बना कर। बट 3-4 Hmm. महीने बाद सब सही होने लग गया। पीपल स्टार्टेड एप्रिशिएटिंग कि भाई बढ़िया कर। बट अगर मैं सोचता कि वो फ़ियर एकदम से हट जाए तो वो नहीं होने वाला। आप जैसे फ़ियर को फेस करते हो ना, वो कम होते रहता है। बट अगर आप उससे भागते हो तो वो बढ़ते रहता है। वो चीज़ आपको इतना खाने लगती है कि यार मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये चीज़ है जो मेरे में बहुत कमी है। तो टू एनीवन जो फ़ियर फेस कर रहा है, पहले तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्नॉलेज इट कि अच्छा इस चीज़ का मुझे फ़ियर है। क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरे शायद पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे रह चुके हैं कि मैं घर पे इतना नहीं बोलता था शायद, या स्कूल में टीचर बहुत मज़ाक उड़ाते थे, बच्चे बहुत मज़ाक उड़ाते थे। बट Hmm. नाउ आई विल डील विद इट, आई विल बी अ बेटर पर्सन, अपग्रेड माय सेल्फ, एंड इसको मैं ओवरकम करूँगा। एंड दैट्स हाउ यू फेस द फियर, यू नो। तो वो एक मेरे हिसाब से एडवाइस है। Right. So, talking something related to this, in order to overcome it, I guess a lot of positive thinking should be put into our mind. So that is हुँ, when our subconscious mind will start, thinking more towards it. And I think this book is more about subconscious mind, and it's talking about how we can, overcome our negative vibes and so on. So, how do you think the subconscious mind will play a role because and program all of us हुँ, into it? ओके। ओके, पहले तो चैट में वीना है, वो बहुत एक्टिव है, रियली लव द रिस्पॉन्स, थैंक यू सो मच। एक क्वेश्चन आया, हाउ टू टेक द फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट हर्डल टू बी क्रॉस्ड। यू नो व्हाट, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि आप फर्स्ट स्टेप जो लेते हो, मतलब सबसे बड़ा मेजर डिसीजन यही होता है कि आपने वो फर्स्ट स्टेप लिया। मेरा पहला स्टेप वीडियो बनाना नहीं था, मेरा पहला स्टेप ब्लॉग लिखना था। बट अगर मैंने वो शायद ना लिया होता तो शायद आज मैं वो काम ना कर रहा होता जो मुझे बहुत पसंद है। तो फर्स्ट स्टेप इज़ वेरी स्केरी, बट इफ यू डोंट टेक दैट, दैट रिग्रेट इज़ गोना ईट यू अप इनसाइड। तो कोई भी चीज़ हो, वीडियोज़ इज़ वन एग्जांपल, कुड बी रीडिंग, कुड बी एनीथिंग, कुड बी यू नो स्टार्टिंग टू वर्क ऑन योर हेल्थ। जो लोग नहीं कर पाते, अभी कोविड की वजह से भी बहुत सिस्टम खराब हो जाता है, बट यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू मेक दैट टफ कॉल। तो वो जब आप लेते हो, देन धीरे-धीरे यू विल फील बेटर अबाउट योरसेल्फ। आप थोड़ा और पुश करते हो, यू विल सी रिजल्ट्स, आप और मेहनत करते हो, देन इट बिकम्स अ हैबिट। हाँ, टॉकिंग अबाउट आप जो कह रहे थे सबकॉन्शियस माइंड का, Right, right. ओके। तो जो लोग सुन रहे हैं, मैं एक बेसिक से समझा देता हूँ कि ताकि सबको समझ आए। 2 एस्पेक्ट्स होते हैं माइंड के, एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी चीज़ है जिस पे बहुत रिसर्च करी गई है, बहुत साइंटिस्ट हैं, बहुत लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस बताए हैं, जिससे ये कंक्लूड हुआ है कि सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा टूल है जो आपको बना भी सकता है, जो आपको बिगाड़ भी सकता है। इफ यू नो हाउ टू यूज़ इट, यू कैन बी अ वेरी सक्सेसफुल मैन, यू कैन मेक अ ह्यूज इम्पैक्ट, बट इफ यू डोंट नो, देन आप डिस्ट्रैक्शंस वगैरह में फँसे रह जाओगे। हियर्स हाउ, इसमें ऑथर भी जो बोलते हैं, उसमें कहते हैं कि इफ यू वांट टू यूज़ योर सबकॉन्शियस माइंड वेल, ट्रेन देम, बट उसके लिए आपको अपना कॉन्शियस माइंड यूज़ करना पड़ेगा। उसमें ऑथर बोलते हैं कि ऑटो सजेशंस होते हैं। ऑटो सजेशंस मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। अब वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। ऑटो सजेशंस मतलब खुद को सजेशन देना। जैसे मान लो आपने ग्लास तोड़ दिया, एक बहुत आदत होती है ना, ग्लास तोड़ दिया, निकम्मा हूँ यार मैं, कुछ कर ही नहीं पाता टाइप्स, राइट? या कि भाई मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं फेलियर ही हूँ। ये ऐसी चीज़ें हैं जो कोई सामने से आपको बोलेगा नहीं कि मत बोल, क्योंकि आप मन में बोल रहे हो। बट ये चीज़ें उतना ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट करने लग जाती हैं। अल्टीमेटली इतना सेल्फ एस्टीम लो हो जाता है, यू रियलाइज़ कि भाई नाउ इट्स टू लेट टू टेक दैट स्टेप। तो इसमें ऑथर कहते हैं, तो जो भी पहले तो आपको ये डिसाइड कर लो कि भाई प्रॉब्लम क्या है? आपको किस चीज़ से डील करना है? कॉन्फिडेंस इश्यूज़ हैं, तो अपने आप को डेली बोलना स्टार्ट करो कि भाई मैं बहुत कॉन्फिडेंट इंसान हूँ। आई नो पास्ट में थोड़े एक्सपीरियंसेस ऐसे, बट आई एम वर्किंग ऑन इट एंड आई एम बिकमिंग अ वेरी, वेरी, वेरी बेटर पर्सन। मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, गलतियाँ कर रहा हूँ, बट उससे सीख रहा हूँ। अगर ये चीज़ आपके माइंड में डेली आ रही है, रोज़ सुबह और रात,
तो आपका माइंडसेट कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। क्योंकि Hmm. जैसा आप सोचते हो, वैसा ही आप एक्ट करते हो। मान लो अगर मैं सोचूँगा कि भाई मुझसे कुछ नहीं होगा, ये बस की नहीं है मेरे, ये काम ही मेरे बस की नहीं है, तो मैं वैसे ही एक्ट करूँगा इस मीटिंग में, इस डिस्कशन में। बट मैं अगर सोच के आऊँ कि भाई मैं लोगों को हेल्प करना चाहता हूँ, अपने एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ, तो दैट्स हाउ आई विल एक्ट कि भाई ये मेरा थॉट प्रोसेस है, दिस इज़ व्हाट आई फील। तो ये एक सोच का नज़रिया है जो सिंपल टर्म्स में अगर मैं समझाऊँ तो। और बाकी बहुत एग्ज़ाम्पल्स बताए गए हैं कि हाउ पीपल हैव ट्रांसफॉर्म्ड देयर लाइव्स। आई डोंट रिमेंबर द नेम एज़ सच। एक स्टोरी है जो बहुत पॉपुलर है कि एक बंदा होता है, वो एडमिट हो जाता है। हैव यू सीन द मूवी द सीक्रेट जो नेटफ्लिक्स पे No, अवेलेबल है? उसमें that इट्स is लाइक टॉक। my wish list now. हाँ, इट शुड बी ऑन योर लिस्ट, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो उसमें भी वो स्टोरी बताई गई है कि एक इंसान होता है, उनका बहुत गंदा एक्सीडेंट हो जाता है एंड डॉक्टर्स ने उम्मीद छोड़ दी होती है कि भाई ये तो नहीं बचने वाला। मतलब एज़ इन ये बेड रेस्ट पे ही रहने वाला पूरा, ही इज़ अलाइव बट ही कैन नॉट मूव फिज़िकली एज़ सच। तो Hmm. सब लोग यही बोलते हैं बट ही बिलीव्ड इट इंटरनली। तो वो खुद को डेली बोलता था सुबह-रात कि भाई मैं ठीक हो रहा हूँ, आई एम इम्प्रूविंग, आई एम हीलिंग विथ टाइम, आई एम हीलिंग। द नेक्स्ट थिंग यू नो आफ्टर अ मंथ ही वाज़ वॉकिंग। यू नो ये एक लेवल ऑफ मिरेकल्स होते हैं व्हिच कैन हैपन इफ यू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इसके ऊपर एक डिटेल्ड बुक भी है टू ऑल द पीपल हु आर इंटरेस्टेड, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। अगर आप उस चीज़ को डिटेल में समझना चाहते हो और एग्ज़ाम्पल्स समझना चाहते हो, तो वो एक बहुत ज़्यादा अच्छी बुक रहेगी। या Right. I understood it with the Three Idiots scene where Raju is on the bed and the other people are trying to push him up. So that was, या I kind of related with that. Okay, so हुँ, you said that, in order to overcome the fear, it's important that we talk about it more so that, we instill our this thing. And I guess Napoleon Hill also mentioned in the book that 1 + 1 is equal to 3, as in when the two different mindsets meet, the हुँ, result turns out to be something big. But at the एब्सोल्यूटली। same time, contrary to it, we also find in the real world that when we don't meet like-minded people or somebody whom we can vibe around with, there is a lot of criticism that keeps coming up. So how do हुँ, we kind of deal with it, like around the negative people or somebody we cannot relate with, but at the same time we cannot elope from there? हुँ। मतलब आप कहना चाह रहे हो कि किसी इंसान से हम रिलेट नहीं कर पाते, वी फील दैट नेगेटिव वाइब बट वी डोंट नो व्हाट टू डू। मतलब Yeah, इस सिचुएशन because there's a fear again, and again it gets down your confidence, and whatever में। you're trying on a personal level, everything just shatters down when you सो come एक across people. श्योर, श्योर। एक बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस बताता हूँ इफ यू आर एन एंटरप्रेन्योर या पर्सन जो कुछ डिफरेंट कर रहा है। क्योंकि मेरा कॉलेज का भी फाइनल ईयर है, आई हैव बीन थ्रू दैट फेज़ वेयर मेरे को बहुत क्रिटिसिज़्म, बहुत जजमेंट्स मिली थी। व्हेन आई स्टार्टेड इट, लोग बोलते थे कि भाई तू पढ़ाई पे ध्यान दे, इस सब में कुछ नहीं रखा। बट द पॉइंट इज़ लोग हमेशा कुछ बोलते हैं। आज ये बोलेंगे कि तू ये गलत कर रहा है, कल बोलेंगे कि भाई तू अच्छा कर रहा है, यू नो। बट आप ये समझो ना कि पूरी ज़िंदगी आपको अपने साथ रहना है। मुझे अब इस तरह से मुझे आदत हो गई कि अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। इनिशियली मुझे बहुत बुरा लगता था, आई क्राइड अ लॉट ऑल्सो। मैं अपने दोस्तों को भी बोलता था कि भाई मैं कहाँ फँस गया हूँ। मुझे नहीं होना चाहिए था इस कॉलेज में कि जो बच्चे ऐसे मेरे को छेड़ रहे हैं। बट अभी आई एम सो यूज्ड टू इट, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि भाई मेरा पैशन ये है। मुझे पता है कि मैं सही जा रहा हूँ। तो ठीक है ना, जिसको कनेक्ट करना होगा, जो विज़न से मैच करता है मेरे, ही विल हैव अ कन्वर्सेशन विद मी, हम डिस्कस करेंगे, कुछ मिलेगा साथ में तो कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे। बट नहीं है तो नहीं है, बोलने वाले तो हमेशा बोलते हैं। तो ये मेरा एक ओपिनियन रहेगा कि आप कुछ भी करो ना, मतलब अगर आपको खुद पे बिलीफ है ना कि जो जिस रास्ते में जा रहा हूँ, वो सही है, तो और चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल वी कनेक्टेड क्योंकि हम लोग लाइक माइंडेड थे। हम दोनों का इंटरेस्ट, हम पूरी कम्युनिटी का इंटरेस्ट बुक्स में था। अब लाइक अगर मूवी किसी और चीज़ में होता, आप सोचते हैं कि नहीं। अब उस तरह से भी तो लोग होते हैं जो उस चीज़ से डायरेक्ट करते हैं, राइट? हर बंदा अपने-अपने ग्रुप से अलाइन करता है। हर बंदा अपने-अपने उन लोगों की तरह अलाइन करता है जिनका उस तरह सिमिलर विज़न है। तो ऐसे अगर हम वो सोचेंगे ना कि भाई ये लाइन नहीं हो रहा, ये नहीं लाइन हो रहा, तो इट विल बिकम सो कॉम्प्लिकेटेड। आई गेस जस्ट बी Absolutely. नेचुरल। या Right, right. I guess if there's even a Bollywood song which says that, no, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना something. हाँ Really जी। evergreen song, I guess. I'm sorry, a ये lot of फील Bollywood gave me. फील लाइक अ गुड बॉलीवुड गीक आई गेस। आप बहुत मूवीज़ या गाने सुनते हो Right, बातों से yeah. लग रहा है। Right. या And I guess we also got a question, which is the best book in self-improvement? वे यार ये ना बहुत एक सेकंड, ये क्वेश्चन कुछ और ही है। हाउ हाउ मैं कौन-सा Wait, I बताऊँ अभी guess 2 क्वेश्चन हैं। हाउ you डू can वन answer सेट the second. गोल्स Yeah. हाउ डू वन सेट रियलिस्टिक गोल्स और डू यू बिलीव गोल्स आर अचीवेबल? ओके। पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा हम गोल्स क्यों सेट कर रहे हैं। मतलब एज़ इन मान लो मैं अपना एक एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ क्योंकि मैं वो चीज़ प्रैक्टिकली फ़ील करता हूँ। मैं ये खुद को गोल दे रहा हूँ कि मुझे 10,000 लोगों तक रीच आउट करना है।
अब जिस इंसान में कोई और इंसान हो, उसका उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, वो गोल सेट कर ले, तो क्या Hmm. फ़ायदा? तो आपको अपनी करंट स्टेट को समझ के गोल सेट करना होता है। जैसे अगर आपको हेल्थ का ध्यान देना है, तो गोल शुड बी कि आई विल स्टार्ट स्मॉल, कि मैं डेली आधा घंटा वॉक करके आऊँगा। बट Hmm. कुछ अचीवेबल अनअचीवेबल नहीं होता, आपकी स्टेट पे होता है कि आपको लगता है कि आप अचीव कर पाओगे। लाइक वो एक होता है ना, वो हमने उसमें भी पढ़ा था बिज़नेस में, गोल शुड बी स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, Right, रियलिस्टिक, right. बाउंडेड। तो ये चीज़ों से आपको समझना है कि ये मेरा टारगेट है, उसके रिलेटेड आई विल सेट स्मॉल स्मॉल गोल्स। Hmm. स्मॉल गोल्स क्या है, आपको बहुत मोटिवेट करते हैं कि मान लो, जैसे मैं जो लोग कम्युनिटी से जुड़े हैं मेरे भी, तो मैं उनको बोलता हूँ कि डेली आप टारगेट लो 10 पेजेस का। अब वो Hmm. थोड़ा-सा हाई है उन लोगों के लिए जो स्टार्ट कर रहे हैं, बट उसकी Hmm. वजह से वो 4-5 पेज पढ़ते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, फिर वो और पुश करते हैं, दे मूव टू 7-8 पेजेस, देन 10। कुछ लोग ऐसे जो 50-50 पेजेस पढ़ लेते हैं क्योंकि उन्हें पसंद आ गया इतना। तो आई वुड से, जिसका भी ये क्वेश्चन था, सेट गोल्स व्हिच यू फील लाइक कि आप कर पाओगे, व्हिच यू फील लाइक कि विल पुश यू टू इम्प्रूव, नॉट समथिंग कि जो ना बहुत ज़्यादा एफर्ट लगने वाली चीज़ हो जाएगी कि भाई ये तो हो ही नहीं रहा। ये ऐसा जैसे आप कह रहे हैं ना कि मोटिवेशनल वीडियो देखने के बाद तो नहीं, आराम से Right. रिलैक्स होके अपना स्टेट समझ के फिर गोल सेट करना चाहिए कि हाँ, अब आई थिंक आई कैन डू दिस। Right. I guess that answers to Sheldon's question. And yeah, या which is the best self-help book which you would recommend? अच्छा ठीक है, मैं आपसे पूछूँ कि बेस्ट मूवी कौन-सी है? Hard to मतलब answer. बहुत सब्जेक्टिव है, मैं ऐसे कैसे बोल दूँ आपको कि यार यही, ये तो हीरा है, राइट? मतलब ठीक है, मैं अपने एंड से अपने फेवरेट बता सकता हूँ, बट कोई Hmm. बेस्ट नहीं होता। अब जैसे मैं ये बहुत बार बोलता हूँ, कोई इंसान जब कोई बुक पढ़ता है ना, वो अपने स्टेट से पढ़ता है। जैसे अगर मुझे प्रॉब्लम आ रही है टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, तो Hmm. उस वक़्त मैं अगर रिलेशनशिप्स के ऊपर पढ़ूँगा, तो मुझे वो चीज़ बहुत घटिया लगेगी कि क्या बकवास बुक है। मेरा स्टेट अभी टाइम मैनेजमेंट के ऊपर है, तो मुझे क्या पढ़वा दिया? तो बेस्ट इज़ जस्ट समथिंग कि जो आप ऐसे जज नहीं कर सकते। आपको लग रहा है कि इस वक़्त ये चीज़ यूज़फुल है, तो द बेस्ट वे टू रीड बुक्स इज़, मैं अभी फेवरेट भी बताता हूँ, बट मैं एक ओपिनियन बता रहा हूँ मेरा, कि बेस्ट वे टू रीड बुक्स इज़ कि मान लो पहले आप खुद सोचो कि जैसे मुझे मेडिटेशन की हैबिट स्टार्ट करनी है, ठीक है? व्हाट आर सम गुड बुक्स ऑन मेडिटेशन व्हिच आई कैन स्टार्ट विद फॉर बिगिनर्स? देन आप देखते हो कि यार सद्गुरु की बुक्स अच्छी हैं या गौर गोपाल दास की बुक्स अच्छी हैं, तो आप ऑर्डर करते हो, आप पढ़ते हो, दैट्स अ गुड वे। बट अगर आप ऐसे ही रैंडमली चूज़ कर रहे हो ना, तो आप अल्टीमेटली बोर हो जाओगे क्योंकि कोई रीज़न नहीं है। बुक्स आर गुड, बट अगर सेंस ऑफ पर्पस के साथ ना पढ़ी जाए, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम मेरे हिसाब से। ठीक है? नाउ मूविंग ऑन टू द पॉइंट पॉइंट मेरे फेवरेट बुक्स में पहला थिंक एंड ग्रो रिच जिसकी हम बात कर रहे हैं। अ, Hmm. दूसरा वुड बी द मंक हू सोल्ड हिज फरारी। आई लव द स्टोरी लाइन। मैं एक आइडिया देता हूँ, आपने पढ़ी है? Right, अब yeah. शेक्सपियर लग Robin रहा Sharma, है, yeah. लग रहा था पढ़िए, हाँ, ठीक है। लव द स्टोरी लाइन कि कैसे एक लॉयर टर्न्स इनटू अ मंक एंड शेयर्स हिज लाइफ लेसन्स इन जनरल। थर्ड वुड बी, बहुत सारी बुक्स हैं। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल वुड बी अ गुड पिक इफ यू आर अ कॉलेज Oh. स्टूडेंट एज़ वेल। अगर आपको सीखना Hmm. है लोगों से कैसे बात करनी है। जैसे जब मैं कॉलेज में आया था, आई वाज़ वेरी नर्वस हाउ टू टॉक टू पीपल, तो उस वक़्त इट वाज़ माय बाइबल कि ये इससे सीखेंगे। तो वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा। Sometimes Right. people keep reading hundred of self-help books, but a will nothing changes. Hmm. How to choose, यार ये वही पॉइंट हो गया ना कि बुक कोई अच्छी नहीं है, आप एग्जीक्यूट कर रहे हो कि नहीं। आप Right. मतलब बातें बातें सिमिलर हैं, आपको हर बुक में सेम बातें मिलेंगी। तभी कहते हैं ना कि सेल्फ हेल्प से लोग बोर हो जाते हैं। मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा फेज़ आता है कि व्हेन आई रीड 5 और 10 सेल्फ हेल्प बुक्स एट वन्स, एक गो में Hmm. चल रही है सारी, महीना 4 महीना हो गया। उसके बाद आई फील लाइक कि अब बहुत रिपिटेटिव हो गया। अब कुछ बिज़नेस पढ़ना है, अब कुछ फिक्शन पढ़ना है, राइट? तो यही Right. चीज़ है, बातें सिमिलर हैं, आप पढ़ के एग्ज़ीक्यूट कर रहे हो ना, देन यू विल फील हैप्पी कि चलो कुछ इम्प्रूवमेंट हुई। अब नाम Hmm. समझ लो ना, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, खुद को इम्प्रूव करना। रीड Right. करके इम्प्रूवमेंट नहीं होगी, एग्ज़ीक्यूट करके इम्प्रूवमेंट होगी। तो डोंट Okay. लेबल एज़ सच कि ये बुक अच्छी है, ये बुक गंदी है। आपने बुक पढ़ी, आपने किसी से कोई बात सीखी अच्छी, तो उसी वक़्त इम्प्लीमेंट कर दो। ये मेरा मानना है। तभी This दैट is विल a very cliche thought which I am having. I might be wrong on this. Usually, the younger people prefer reading on something, romantic comedy or adventure, thriller, something of that sort. But what made you pick self-improvement books? इसके पीछे भी एक्चुअली एक स्टोरी है। ठीक है? तो आई रिमेंबर मेरे 12th बोर्ड्स का टाइम था। वो होता है ना वो स्ट्रेसफुल सा फेज़ सबकी लाइफ़ में कि भाई ये तो बेटा 12वीं कर ले, ऐश ही ऐश है। Something I'm facing now. अच्छा आप 12th में हो? अच्छा, ठीक है। Yeah. ओके बेटा 12th
पढ़ ले, ऐश ही ऐश है, पता नहीं इस ये मार्क्स तो सब देखेंगे भाई, ये तो तुम्हें करना चाहिए, 11th में जो मस्ती होगी होगी, 12th में पढ़ना है। तो उस वक्त आई वाज वे टू मच इनटू 12th क्लास, बहुत मैं पढ़ रहा था, सुबह 2 घंटा। मैं कॉलेज में आई मीन मैं स्कूल जाता था, बस आई हैड नो ट्यूशन, तो मैं सेल्फ स्टडी करता था। तो उस वक्त क्या था, एक ऐसा फेज आ गया था मेरा, वाज टायर्ड ऑफ 12th बुक्स एज सच। मुझे लगा यार ठीक है, कुछ नया पढ़ना है। सो माय मॉम, शी इज एन एविड रीडर, उनकी पूरी कलेक्शन है। तो एक बुक थी यू कैन विन बाय शिव खेड़ा। वो मम्मी ने मेरे टेबल पे रखी थी कि दिशु, मतलब सॉरी मेरा निकनेम है दिशु, दिव्यांश, ये बुक पढ़ लियो तू, बहुत अच्छी रहेगी। एंड मैंने कहा ठीक है। तो मैंने ट्राई करी एंड आई लव्ड इट। अब मैं एग्जांपल देता हूँ चेंज कहाँ से आया। उस बुक में ही फियर वाली बात लिखी थी कि इफ यू रियली वांट टू बी दैट गाय हु यू लुक अप टू, यू नो, Hmm. फेस दैट फियर। तो मेरे में हमेशा ये फियर था कि मैं बहुत नर्वस था, मैं लोगों के आगे नहीं बात कर पाऊंगा। सो बिकॉज ऑफ दैट बुक आई टर्न फ्रॉम अ शाय गाय टू अ गाय जो 12th क्लास की फाइनल डे पे अपने टीचर की मिमिक्री कर रहा था 500-700 लोगों के आगे। Okay, So that's that something really big. एग्जैक्टली, बट आई वाज सो हैप्पी, आई वाज सो हैप्पी कि भाई ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है बुक्स का। एंड देन लाइक आई डिडंट लुक बैक एज सच। फिर मुझे इंटरेस्ट आ गया, यू नो, लाइक जिम, जैसे जिम में होता है ना, लाइक कोई भी यहाँ पे जिम वगैरह जाता है, कि आप महीना जाते हो, यू सी द चेंजेस, आपकी बॉडी में गेन्स आने लगते हैं, यू फील हैप्पी कि अब तो जिम ही सब कुछ है। तो एग्जैक्टली ये हुआ था कि पहला एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गया, तो मुझे लगा चलो सही जा रहा है, सही पट रही है, अभी और पढ़ेंगे चल के। यहाँ से स्टार्ट हुआ। Right. Okay. So this is kind of bringing us to the wrap up of the show. But before that, as you mentioned, fear is something which I loved the most in this book, Think and Grow Rich. So why I liked it is because I got a very raw picture drawn in my mind, where I guess he gave an example where there was a troop of soldiers who were about to face a big troop, and they didn't have really much of no equipments or anything of that sort. So what the commander said is set the boat on fire. So what happened is they didn't have an option, either karo ya maro. So they had a mindset being installed that we have to win to survive. So apart from this, what are the five things which made brought your interest in the book Think and Grow Rich? 5 ठीक है, ऐसी 5 Interesting चीज़ें थी, facts or बहुत चीज़ें something हैं। like पहली चीज़ तो यार रिच वाली चीज़, इट साउंड्स वेरी क्रेज़ी, नाम अच्छा है यार, नाम बहुत अच्छा है मुझसे। that. दूसरा यार आई डोंट नो, मतलब मैंने ये बुक पहली बार अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में पढ़ी थी, आई रिमेंबर, जस्ट फॉर ट्रायल कि क्या होता है। तो वहाँ जब मैंने वो क्लासिफिकेशन देखी ना कि डिज़ायर्स, यू नो, फेथ इन जनरल, वो टॉपिक्स ऐसे हैं जो आई गेस हर एंटरप्रेन्योर रिलेट कर पाता है, या एक ऐसा इंसान जो अपने करियर में कुछ कुछ ऐसा है, या तो फँसा हुआ है या कुछ अनकन्वेंशनल करने का सोच रहा है। सो आई फाउंड दैट टू बी वेरी रिलेटेबल कि यार अभी इस फेज़ में ना मुझे ये बुक बहुत हेल्पफुल रहेगी। तभी मैं अपने पहले बैच में ही, जो मेरा बुक्स टू बिलियनेयर का पहला बैच है, उसमें हमने थिंक एंड ग्रो रिच ही पढ़वाई है सबसे। उसमें मैं नहीं चाह रहा था कि वो स्टार्ट किसी और से करे, वो स्टार्ट इससे ही करे, इस मेंटालिटी से कि भाई एक रिच माइंडसेट, एक एक बिलियनियर मिलियनियर माइंडसेट। और तीसरा, आई वाज वेरी क्यूरियस कि यार मिलियनियर्स बिलियनियर्स ऐसा क्या सोचते हैं यार, मतलब एज इन यू नो मैं उसका आंसर भी दूंगा कि आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च व्हाट आई लर्नड, बट स्टिल आई हैड अ क्यूरियोसिटी कि भाई ऐसा क्या वो करते हैं, व्हाई आर दे हू दे आर, वो मिलियनेयर बिलियनियर्स क्यों हैं, हमारे में ऐसी क्या कमी है, या हम ऐसे क्या गलती कर देते हैं। सो व्हाट आई लर्नड वाज, होता क्या है कि we all work hard to reach a particular stage, we all do, हम सब करते हैं, but when we get to that stage we become very stagnant। but आप देखो ना, कोई भी सक्सेसफुल इंसान, कोई भी लीडर, वो हमेशा लर्न करता है, he reads a Hmm. lot, he consumes a lot of good content, he improves his knowledge constantly। अब बिल गेट्स ले लो, आप मार्क जकरबर्ग ले लो, आप स्टीव जॉब्स ले लो, कोई भी ले लो, दे हैव दिस हैबिट टू लर्न कॉन्स्टेंटली। तो ये चीज़ मैंने सीखी एंड आई स्टिल इम्प्लीमेंटेड टुडे एज वेल कि मुझे कुछ सीखना है। So basically there are two types of pleasures as such। One is normal general pleasure, जो मान लो आपने एक पबजी खेल लिया, आपको मजा आ गया। एक हो गया इंटेलेक्चुअल लेवल पे प्लेजर कि आपने नॉलेज सीखी, आपने शेयर किया, आपने उसे इम्प्लीमेंट किया। सो दे हैव दैट लेवल ऑफ प्लेजर्स इन देयर लाइफ कि मुझे इस चीज में मजा आता है। सो दे हैव देयर प्रायोरिटीज वेरी स्ट्रेट आउट कि ये चीज मुझे पसंद है। तो आई गेस ये डिफरेंट होता है।
Right. I guess that brings us to the end of this conversation. I personally loved this session a lot. Like, So, wonderful. if you would like to, meet and talk about your favorite books, then just join our book reads community. This is one such community which joins all the like-minded people across the globe together. So, what Mm. more? What are you waiting for? Just tap on the link provided, and you will be directed to the WhatsApp group where we all can talk about our favorite books and authors. And it was a great pleasure talking to you, Divyansh, because I personally learned a lot of stuffs and learned about why self-help books are good, what impact can it have on my life as a person, as an individual. And obviously my next pick would surely be in detail about Think and Grow Rich, because I Yeah. felt I was a very raw reader at that time when I read this Mm. book. Now I guess with a different mindset I can read it. So Thank probably the next time we catch up, we will have more conversation on this, because I you. surely would love to have on it. Likewise, likewise. Thank you so much for having me. And to all the people जो ये session देख रहे थे, it really means a lot to me. मैं आया था बस normal natural बात करने. I remember when we were thinking कि क्या script रखेंगे, तो स्वाति ने खुद कहा था कि let's keep it natural. कि भाई देखते Right. हैं क्या how much value we can add to people by sharing what we actually feel. तो मुझे genuinely Right. बहुत अच्छा लगा बात करके, and it was great. Like let's do it again sometime. For sure. Let's connect. Right, sure. So that brings us into the show. So thank you so much. If you're not a part of this community yet, just join in the link and we can all join together. And I hope you all are safe and stay safe, stay home, stay happy. Thank you so much. Thank you so much, Divyansh, for joining in, and all to all our audience Thank you. out there. Thank you so much for having me. Good night, everyone.